Hello student of 11th class, this is Pratyush Yadav and I'm going to start geography subject. Yesterday I sent introduction and logo of textbook and books name. As you know that there are 6 textbooks in geography you have to read, you have to understand in 11th class. Your first book is India Physical Environment and second book is Fundamentals of, this is first book. Second book is Fundamentals of Physical Geography. And third textbook you have to take practical work. Work in geography. These are 3 textbooks in 11th class students. But I'll take today an introduction video of your first textbook, that is India Physical Environment. Actually this textbook is totally similar to the textbook of 9th class geography. Approximately chapters name is similar, contents are similar, but little improved, little advanced. So student of 11th class, now you have chosen that you are going to take art stream, humanity stream, and your desire, your ambition, your goal is something different from mathematics group and biology group. Student, be confident, and SST is very important subject, social science. It play vital role in our competitive life, in our actual real life. If you want to become IAS, PCS, if you want to become SSC, want to crack SSC, bank, railway, Lekpal, every one-day examination, this portion of geography as history and economics, political science, it means social science, play a very important role. So try to develop a deep interest in these subjects and in your subject actually. Okay student, come to the main point. LFS के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब बेटा आप हम बहुत अच्छे से हम चीज़ों को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, वो चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है. दिस इज योर टेक्स्ट बुक. ओके, योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक is India location. India location, this is your first chapter. This is your first chapter of this textbook. And go and see the textbook of 9th class. There you will find India size and location. India size and location, but here India location. But we will read same things. We will read same things, but something basic also. Okay. One thing I want to tell you. In lower classes, in 10th class not, in 9th class and 6th and 8th class, you have understood what? Actually, unit 1, this belong from unit 1. Unit 1 is introduction. Introduction. If you see in textbook that your unit 1 is totally introduction, written introduction. Unit 1 introduction and first chapter India and location. Okay, so let's start. India and location. It means लोकेशन ऑफ आवर कंट्री. हम आज आप लोग को इस वीडियो के थ्रू हम एक चीज बता देना चाहते हैं.
This is our earth. This is our, सॉरी मार्कर की दिक्कत हो रही है बेटा. Okay, suppose this is earth, and you know that earth is divided by equator. It means 0 degree latitude, latitude longitude. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. If you want to locate anything here, earth पे, anything if you want to locate, how do you locate? How will you locate it? For locate anything on globe, to locate anything globe, latitude and longitude, these are imaginary lines are developed to locate these all the things. Maybe they are points, they are countries, or maybe points or areas. For location of point and areas, we have developed and some imaginary lines. Okay, this is our North Pole, this is South Pole. South Pole, and 23 half degree north and 23 half degree south. This is equator. Equator, and this is Tropic of Cancer. Tropic of Cancer, and this is Tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn. हमारी जो कंट्री है बेटा, हमारी कंट्री जो है यहाँ पर लोकेटेड है. ऐसे ऐसे लगभग एक रफली अगर हम वीडियो एक मतलब बना दें अगर हम, तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री यहाँ पर लोकेटेड है. तो लोकेशन यहाँ पर है. इट मीन्स टोटली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. टोटली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ओके, तो कुछ हम पॉइंट्स को पढ़ेंगे. ठीक है, कुछ पॉइंट्स को हम पढ़ लेते हैं. फर्स्ट, इंडिया इज टोटली लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. टोटली लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ये यहाँ ग्लोब का लोकेशन है. और अगर हम देखेंगे आपकी जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड मीन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो एक कोई लॉन्गिट्यूड विल पास थ्रू द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, एंड वन एनी लॉन्गिट्यूड विल पास फ्रॉम ईस्टर्न मोस्ट of our country, and one latitude will also pass from the southernmost land of our country, point of our country, and one latitude will pass northernmost of our country. तो क्या इस चीज़ को हम ऐसे नहीं बता सकते हैं कि जो सबसे वेस्टर्न से जो लॉन्गिट्यूड जा रही, सबसे जो ईस्टर्न से लॉन्गिट्यूड इसके बीच में है, और सबसे जो सदर्न लैटिट्यूड और सबसे नॉर्दर्न लैटिट्यूड जा रही है उसके बीच में, तो हम इंडिया का लोकेशन बता देंगे. यानी ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कंबाइनली मेक ए ग्रिड, एंड थ्रू दिस ग्रिड वी कैन लोकेट एनी पॉइंट एंड एनी एरियाज. ओके, हम थोड़ा सा आगे अपनी कंट्री के बारे में भी पढ़ते हैं. हाँ बेटा, देखिए मैंने एक जनरल मैप ड्रा कर दिया, मैप भारत का. ओके, फर्स्ट हम आज देखते हैं कि लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इसका कितना है. नॉर्थ में जैसे जम्मू कश्मीर, यू नो, एक वन लैटिट्यूड विल पास हियर फ्रॉम, एंड वन लैटिट्यूड फ्रॉम हियर, वन लॉन्गिट्यूड फ्रॉम हियर, एंड वन लॉन्गिट्यूड फ्रॉम दिस. ओके, अगर हम आपसे बता दें
कि इस लॉन्गिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड के बीच में, इस लैटिट्यूड के इस लैटिट्यूड के बीच में भारत का लोकेशन है। तो कोई भी बहुत आसानी से जान सकता है कि भाई भारत का लोकेशन कहाँ पर है। इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में। ओके, लैटिट्यूड के बीच में। और अगर आप इधर देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये ईस्ट है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आपका है। टोटली लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, as you know that this is 7th largest country in term of area and 2nd largest country in term of population। तो अगर आपको लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात की जाए तो क्या बताओगे? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट longitude between, and from 8 degree 4 minute north latitude to equator, it means 8 degree here, नीचे दिखेगा नहीं तो आप नीचे देख सकते हैं कि मतलब आपका इक्वेटर के नॉर्थ में है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एक्चुअली अर्थ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इक्वेटर डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट, द नॉर्थ पोर्शन ऑफ ग्लोब इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, so this is totally not in northern hemisphere. Okay, and one thing, tropic of cancer pass through middle of our country and divide into two similar part. Tropic of Cancer, it means 23.5 degree north latitude. Tropic of Cancer, it means 23.5 degree north latitude. Divide it into, and it pass through 8 states. What are they? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, इसको आप टेक्स्ट बुक से अपने देख करके लिख लेना। अब एक चीज़ और देखते हैं, भारत के, अगर आप ये भारत का जो सदर्न मोस्ट पोर्शन है, ये 22 डिग्री से लगभग 22 डिग्री नॉर्थ से लेकर के नैरो होने लगता है। 22 डिग्री से लेकर के थोड़ा ये नैरो होने लगता है। साउथवर्ड वी मूव साउथवर्ड from 22 degree north latitude, it start to narrow in the east of our country, a water body that is Bay of Bengal, and the in western part of our country, that is Arabian Sea, and साउथ में आपको क्या मिलेगा? इंडियन ओशियन, एकमात्र ऐसा ओशियन जो किसी देश के नाम पर है, इंडियन ओशियन। ओके, ये तो आपके अगर दिमाग में बैठाओगे तो ग्लोब पे लोकेशन है, उसके चारों तरफ ये है। ठीक है, इसके कुछ नेबरिंग कंट्री हैं, उसको तो आगे, अब यहाँ पर देखोगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर चाइना, फिर यहाँ पर ये पोर्शन जो है ये नेपाल का है, नेपाल, यहाँ पर भूटान, यहाँ पर म्यांमार, यहाँ पर बांग्लादेश और श्रीलंका और मालदीव, ये आपके वो है। इस तरीके से हमारा देश का लोकेशन है यहाँ पर। अब इस लोकेशन को जानने के बाद हम इसके अंदर की चीज़ों को पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आज के लिए इतना आप पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसके एक चीज़ बता देते हैं। फ्रॉम नॉर्थ, इट मीन्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू सदर्न मोस्ट ऑफ आवर कंट्री, दिस इज नियर अबाउट 3214 किलोमीटर। ओके, एंड गुजरात एंड बिटवीन
ऐसे कर सकते हैं, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, फ्रॉम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट टू सदर्न मोस्ट पॉइंट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इन नियर अबाउट 30 to 114 किलोमीटर, एंड फ्रॉम ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट टू वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट दिस इज नियर अबाउट 2933 किलोमीटर्स. ओके, दिस इज डिस्टेंस. ओके, अब हम कोस्टल लाइंस को और नेबरिंग कंट्रीज को और कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे. एवरी डे वी विल I'll take your class for 15 minutes to 20 minutes. Your video you will find कि आपको ज़्यादा बोरिंग ना लगे और ज़्यादा परेशान ना हो स्टूडेंट. और आप लोग टेक्स्ट बुक ले लीजिएगा बेटा, अच्छे से आप पढ़ाई करिए. थैंक यू.